So first and foremost, it's a big surprise. I'm sure you all were expecting Mr. Tokir Zafar to be here, all right? But then we had to tell Sir at the last minute that we have a very special guest who is there with us today. And we had to tell Sir that we needed this class because this is a very new batch, and as part of our promise to you, for the overall development of your personality, that we bring a special guest for our sessions so that you get an idea about this. Now, before I proceed further, let me introduce myself. My name is Georgie Martin Nainen. I'm a member of the management team in Dishti. Along with me, I have a special guest, and I'm going to leave it to the platform. If anyone could tell me who is this lovely guest with me today. Good. So the current affairs classes are going pretty well, is what I can assume. All right. Yes. So just like you said, we have Miss Anu Beniwal with us. She's the All India rank 217 for 2021. All right. So we were just having a chat with ma'am, and then she said, she would love to meet our students for today and just to have a discussion. And the purpose of this session is that, you have classes that you receive, you have everything that you want for preparing for the civil services. But equally, it is important that you meet people who have crossed to the other side and give you a first-hand experience. All right. So ma'am has promised us some time for the students. She's going to tell you very interesting anecdotes. We had a discussion where she was telling the interesting story on why the civil services, and most importantly, she's chosen the Indian Police Service as a cadre and things like that. All right. So she said she's going to start the session, and then we're going to leave the platform open to you as well. So please feel free, to ask all your questions, whatever it may be, so that you get a perspective about your preparation and things like that. All right. And now, before I hand over the mic, on behalf of the management and ma'am, on behalf of the students, I would love to give a small token of our appreciation. All right, a big round of applause, ma'am. All right, so with this, I conclude. I'm not going to bore you any further, and I shall hand over the platform to ma'am. All right, ma'am. Thank you so much. Hello. Good morning. So excited to hear me. Thank you so much. तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए क्योंकि after these 3 days I'll be going to Labasna. सब वही स्टोरीज देख के आए होंगे ना, मतलब एक सपना है सबके मन में कि यस समडे वी विल गो टू दैट प्लेटफॉर्म लबासना. वो फोटोज वगैरह सबने देखी हैं. वी ऑल हैव दैट स्टोरी इन आवर माइंड कि यस probably in 2023, 2024, 25 we all have that plan, yes, that someday we are going to reach Labasna, and my dream is going to be true thanks to the Almighty. So I'll start telling you something about me. As you all know, my name is Anu Beniwal. I come from Delhi. Delhi में north west में एक जगह है Pitampura. I come from there. And Pitampura में भी एक और छोटी सी जगह है Pitampura village. So I come from a village. मतलब surprisingly, yes, Delhi has villages also. So yes, we do have villages. Our villages are not very like to Haryana and UP or Rajasthan या आप कहीं और से आ रहे हैं वैसे, पर yes, we do have a village life. So I was born and brought up in a joint family. I still live in a joint family, काफ़ी बड़ी सी, और till around 4th or 5th standard मेरे घर में 2 भैंसें भी थी. So yes, that's how I have been. तो काफ़ी बड़ी सी joint family जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं. My grandmother, my grandfather was there. तो वहाँ से शुरू किया था. तो I am sure a lot of people are coming from very humble backgrounds here, and it's okay. A lot of people are coming from middle class families, थोड़े high class भी होंगे, पर mostly we are from the lower middle class ज़्यादातर, क्योंकि शायद हम लोगों को बहुत मन में होता है कि yes, we want to reach that social mobility, कि एक ही जन्म में अगर बहुत कुछ करना है और इंडिया में रह के करना है तो सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट थिंग. शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हम लोगों के लिए. तो वैसा ही कुछ था जहाँ मैंने अपना सपना लिया था. मेरी पहली बैटल जो थी, जो मैंने अपने घर में देखी थी, दैट वाज व्हेन माय मदर डिसाइडेड टू सेंड मी टू अ प्राइवेट स्कूल. तो मेरे 3 भाई थे मेरे साथ, एक मेरे रियल भाई थे, 2 मेरे कज़न थे, एंड उन्होंने डिसाइड किया था, मतलब फैमिली ने, जैसे हमेशा होता आया है
कि they were sent to a private school and I was asked to go to a government school. क्योंकि हम लोगों में मतलब in my surname, in my community, in my village area, there was no girl जो मेरे से पहले प्राइवेट स्कूल में गई थी. So that was the usual thing कि भाई इसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजना है. Although my family was capable of sending me to a private school, पर लड़कियां शायद उस लिए मतलब उनको लगा था कि ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती आई वहां ही भेजेंगे. एंड बट आई वॉज अ लकी चाइल्ड, आई वॉज अ ब्लेस्ड चाइल्ड कि माई मदर वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग and she has been the strongest pillar of my life and she fought with my entire family, my father, my grandpa, ताऊ जी, ताई जी, बुआ, सबसे कि नहीं मेरी बेटी तो प्राइवेट स्कूल में जाएगी, आपको जो करना है कर लीजिए, ये तो जा रही है. एंड देन शी वाज आस्क्ड कि ठीक है अगर तुम्हें प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो फिर आप फीस भी पे कर लीजिएगा, हम नहीं देंगे. सो दैट वाज द डे व्हेन माय मदर यूज्ड द फर्स्ट थिंग जो वो डाउरी में लेके आई थी, और वो थी सिलाई मशीन. तो शी स्टार्टेड स्टिचिंग सूट्स. तो उससे जो उनका बनता था उससे उन्होंने मेरी स्कूल की फीस दी थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर 200 रुपीज़ वॉज माई मंथली फीस और मम्मी देती थी. और मेरी यूनिफॉर्म भी मम्मी ने ही स्टिच करी थी स्कूल की पहली. तो दैट वाज द टाइम जहाँ मुझे ये लगा था कि मतलब जो भी लेना है ना वो लड़के लेना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे. सो दैट्स द फर्स्ट बैटल आई रिमेंबर. द सेकेंड बैटल विच आई रिमेंबर अगेन, मेरी मदर ही थी सोल्जर उसमें, आई वॉज द विटनेस. तो नाम लिखवाया गया था शुरू में अनु कुमारी, क्योंकि लड़कियों को सरनेम नहीं मिलता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो इट एंड कुछ को शायद नहीं पता होगा, पर इन जनरल हम लोगों की सोसाइटी में, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, विलेजेस में, तो ऐसा होता है कि लड़कियों को सरनेम नहीं दिया जाता. वी आर गिवन कुमारी, बाला हो गया, लता हो गया, सिंह हो गया, चौधरी हो गया, बिकॉज वी आर सपोज टू गेट आवर सरनेम आफ्टर मैरिज. तो हम लोगों को सरनेम कम ही मिलता है. तो मेरा नाम भी वही लिखवाया गया था एंड ऑल माई ब्रदर्स गॉट बेनीवाल्स. तो माई मदर वाज लाइक कि क्यों भाई ये भी इसी घर में पैदा हुई है एंड आई विल गिव हर अ सरनेम. तो द एंटायर फैमिली, द एंटायर नेबरहुड वाज लाइक कि आज तक किसी लड़की को हमने सरनेम नहीं दिया है और आगे मिलेगा हम नहीं देंगे. बट शी डिसाइडेड एंड शी वाज फर्म इन हर डिसीजन एंड थैंकफुली मिला मुझे. और मैं पहली लड़की थी वहां से जिसको सरनेम मिला है. मेरे बाद अब लड़कियों को मिलना शुरू हुआ. तो वो भी काफी बड़ी बैटल थी कि एक सरनेम के लिए भी आपको फाइट करनी पड़ती है कि आप अपनी हर सोशल रियलिटी को, जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रीजन, रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप सब कुछ बदल सकते हो. दिस इज द पावर ऑफ दिस एग्जाम एंड प्रोबेबली ये वाली चीज ना आपको शायद और कहीं भी नहीं मिलती है इंडिया में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी करियर में, दैट यू कैन एक्चुअली चेंज योर रियलिटी. जहां आप हुए हैं, पैदा हुए हैं, जिसके साथ आप वो बदल सकते हैं. उससे जुड़ा हुआ जो लोगों का सोच है वो बदल सकते हैं. सो दैट वाज वन थिंग अबाउट माय सरनेम एंड माय प्राइवेट एजुकेशन. ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन, मतलब काफी अच्छा है, इनफैक्ट इट्स चेंजिंग और काफी इम्प्रूव हो रहा है. बट स्टिल लाइक इट वाज अबाउट गिविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी. इट वाज अबाउट माय राइट कि अगर मेरे भाई को मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता था. एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसी ऐसी बहुत कहानियां हैं और उनसे इंस्पायर होके बहुत लोग अपनी फैमिलीज में चीजें चेंज करेंगे. आई डोंट वांट कि भाई जो बैटल मेरी मदर ने देखी या जो मैंने फेस करी वो बाकियों के साथ हो. So that was one thing. Then I completed my school education. Then I went to Hindu college. I have done BSc Physics honors. I was an hardworking, disciplined child थी मैं और ठीक ठाक मार्क्स आते थे मेरे. I was the district topper of 10th standard, then 12th standard. College में second year में I was college topper, third year में I was university topper. Then I did my masters in physics, Department of Physics and Astrophysics, Hindu College, Delhi University से. After that, I spent 3 years in research work. I have 7 research papers on my name. I've attended an international conference also. And after that time, I decided that now I will be writing civil services. So this is something I would say कि
इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि मैंने इतना लंबा जो है अपना बाकी चीजें करके and then I shifted to civil services. I'm sure you people are much younger, right? Probably in the bracket of 20 to 24, most of you, right? So this is a very good age to start for civil services. Although UPSC is giving us the age of 32, 35 as per the benefits, but still it's good to start early. It's good to start early when you are in graduation or you have done your graduation. बाकी तो कभी भी आप कर ही सकते हैं. सो दैट वाज वन थिंग कि मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था. तो लेट शुरू करने का भी थोड़ा यही था कि ऑल्दो आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन IPS एट अ वेरी यंग एज. I was probably in 4th or 5th standard when I saw someone in police services, someone in the family. और मेरी तो देख के आंखें ऐसे चमक गई थी कि ओके ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. Like when you see an Indian police officer, IPS, it's amazing. The kind of uniform they have, the kind of aura they have, वो वर्दी की चमक, then their office is so beautiful, and then the power of that mighty pen, the power of those words, you know, that one signature can change the lives of so many people around you in that district. It's amazing. आप एक छोटा सा सोच के कुछ कार्य कर लेंगे और इतने लोगों की जिंदगियों में कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं. सो दैट वाज अमेजिंग. एंड फिर वर्दी वाली चीज हुई. उसके बाद जैसे लोग उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, जैसे सैल्यूट कर रहे थे, और वो जो जय हिंद वाली चीज थी वो बड़ी खूबसूरत थी. और वो सपना उस टाइम जो देख लिया ना वो मेरे से छूटा नहीं. So that's probably the reason why I have chosen IPS as my first preference. I tried, a lot of people advised me that this is not the right thing, you should choose IAS as your first preference. पर मेरे से बना नहीं. I tried my level best कि मैं सोचूं कि भैया IAS की तरह मैं अपने आप को इमेजिन करूं, पर मैं उस चीज़ में अपने आप को देख नहीं पाती. Although as per the standards जो लोग बताते हैं तो IAS की पावर IPS से ज़्यादा होती है. पर मैंने कई चीज़ें बैलेंस करनी सीखी अपनी ज़िंदगी में, और वो है जो मुझे लोग बता रहे हैं, द फेम, द पावर एंड एवरीथिंग. पर मेरे लिए उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रही है, एंड दैट इज़ माई मेंटल पीस. जिस चीज़ में मैं खुश होके सो पाऊँ, जो चीज़ मुझे खुशी देगी, और वो शायद मुझे IPS में मिलेगी, IAS में मिलेगी नहीं. तो आई एम हैप्पी. And a lot of people have said कि work life balance नहीं हो पाएगा. Oh my God, you are a woman. How are you going to take care of your kids? मैंने कहा probably I'll take better care of them. क्योंकि मुझे जब इतने लोगों की परवाह होगी तो उनकी भी परवाह होगी, मैं कर लूँगी. और आप देखते जाइए, my mother has taught me how to be a rebel, how to defy things. तो शायद मैं भी कर ही लूँगी. तो वहाँ से वो सिविल सर्विसेज वाला, स्पेशली IPS वाला मेरा ड्रीम बना था. So when I decided to appear for civil services after my masters, I asked my father, and my father was of the opinion कि dare you appear for civil services exam and you are going out of this house. So it was a strict no. कि no, civil services is not for girls, and IPS no 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 beta, this is not going to happen in this family. तो एक दो रिलेटिव से बात हुई तो उनका भी ये था कि नहीं नहीं नहीं, इससे शादी कौन करेगा अगर ये IPS बन गई तो ये तो नहीं हो पाएगा. तो इट वाज डिसाइडेड कि भाई घर से तो आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है. द टू स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो मेरे पास उस टाइम पे थे, दैट वाज माय मदर एंड माय ब्रदर. माय ब्रदर इज एन ईयर यंगर टू मी एंड ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT Delhi. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट टेल माय फैमिली अबाउट इट. So my father got to know about my civil services preparation when I cleared my prelims. उससे पहले उनको पता ही नहीं था. My entire family, my neighborhood, उनको पता लगा है जब मेरी रैंक आ गई है. And they were like, when did you give the exam? Because they were of the opinion कि ये तो PhD कर रही है, क्योंकि 3 साल मुझे हो चुके थे, पेपर्स वगैरह आए हुए थे. और जब मैं घर में पढ़ रही होती थी तो उनको लगता था कि शी इज प्रिपेयरिंग हर थीसिस, क्योंकि अगर दूसरा पता लगता तो घर में महाभारत हो जाती. तो जैसे तैसे छुप छुपा के मैंने प्रिपरेशन की थी. थैंकफुली नंबर आ गया और बात बन गई. But it took me a lot of time in civil services also. I failed my prelims.
I failed my mains. Then in 2020 attempt, I got 638 rank. So I got DANIPS. Probably you know about it. It's Delhi and Andaman Police Service. So last year मुझे वो मिल गया था, and then I appeared again for the 2021 exam. And this year I have got 217 rank with IPS as my first preference. Probably I'm the only girl in the entire list जिसने IPS पहली preference रखी थी, and I'm very glad that I got it. और लास्ट ईयर डायनेप्स का जो मुझे मिला था उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ था इस साल 1 मई 2022. सो आई हैड एन अमेजिंग 2.5 मंथ्स एक्सपीरियंस इन डायनेप्स. काफ़ी अच्छी बढ़िया जॉब थी एंड अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस. द लास्ट एक्सपीरियंस वाज कि मेरा अभी रेड फोर्ट पे ड्यूटी था, नाइट ड्यूटी 11th एंड 13th को, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. When you wear that uniform and you go for maintaining the security and law and order of Red Fort, it was an amazing experience. Trust me, all of these years जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना, जितने भी पढ़ाई करोगे एंड जब रूम में बैठे होगे और ऐसा लगता है कि ये चारों दीवारें मुझे घेर लेंगी और अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, ये सब कुछ ऐसे वॉश हो जाता है, एक झटके में वॉश हो जाता है. when you get your rank, when you get your posting, it's amazing. मतलब it's better than what you are thinking and what you are dreaming right now. It's even better. That was an amazing experience and now I will be going for my IPS training. पहले मसूरी में and as you all people know, Swapna Academy उसके बाद हैदराबाद. So that's the brief about my journey. And if you people would have some questions, then we'll take it उसके बाद में. Coming towards the preparation. We'll have a brief interaction about preparation also. तो सबको पता है 3 लेवल होते हैं. So we all know about कि भाई 3 चीज़ें हैं, ये सब पढ़ के आए हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं आया होगा. प्रीलिम्स है, then we have mains and then we have interview. You all are English mediums, right? Okay, great. And you have just started your batch. Okay. कितने दिन हो गए? 4th अगस्त को. ओके, तो बहुत सारे सपने हैं इस क्लास में अभी. आई ऑल्सो स्टार्टेड एट द सेम टाइम, इसी अगस्त के आसपास ही. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स. सबको पता है 2 पेपर होता है. मॉर्निंग इज वेरी गुड एंड शाम को सीसेट इज क्वालिफाइंग, यू ऑल नो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग इन सीसेट, यू ऑल नो. बहुत ज्यादा. ठीक है, तो जीएस के लिए ना, यू प्रोबली आर हियर फॉर जीएस, सारे के सारे, है ना. तो वी ऑल हैव द बुक लिस्ट विद अस. ओके, देन यू आर गोइंग टू हेल्प मी अबाउट द बुक लिस्ट. चलो बताओ. फॉर पॉलिटी, वेरी गुड, लक्ष्मीकांत. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ, yes, DD Basu is a good book, but I would give it 2 number. Okay, that would be my second priority list. कि अगर मेरे पास समय है and I have the enthusiasm to read another book, then I'll go for DD Basu. Otherwise, Lakshmikant is a Bible for polity. Okay, and then history. History में पहले modern बताओ. Very good. Spectrum is a good book. Some people are talking about Bipin Chandra. I have read Bipin Chandra. It's a thick book, but it's a nice book. So the difference between Spectrum and Bipin Chandra is that Bipin Chandra has some extra information. Like there is this keys affair, जो मास्टर ताराचंद वाला था. तो कुछ information है उसमें बिपिन चंद्रा में जो extra है. Cost benefit थोड़ा सा कम है. So what you can do is, if you are interested in reading Bipin Chandra, read it at this time when you are starting with your foundation course. और उसमें से ना find out the things जो आपको लग रहा है कि spectrum में नहीं है, and then write it somewhere. I made 10 pages out of Bipin Chandra which are not in spectrum, and then I have kept those pages with my spectrum. So every time I'm going for history, I will just revise them because I can't read Bipin Chandra दोबारा पूरा. ठीक है, तो that was my strategy. Then talk about ancient and medieval. Okay, so probably people are going for NCRTs. NCRTs mein we have this thing old and new, and a lot of people might be knowing about this Tamil Nadu history book, right? So all of them are nice, but I have studied Tamil Nadu history book and the new.
New books are basically with the name of themes. Okay. So themes में थोड़ा सा ये है कि it's very pictorial, it's very interesting to read. So that's why themes. But you can opt anything between old and new. There's no problem. Whatever keeps you interesting and जो हो सकता है वो आप कर सकते हैं. उसके बाद next subject geography. Simple NCRTs starting from 6th standard. Nothing can replace NCRTs in geography. कुछ भी नहीं. तो keep it very simple. Go for NCRT starting from 6th. And also for ancient medieval. Themes वाला जो है ना, it starts with 6th class. Okay. Then talk about, okay, also study GC Leong with it. है ना? You might have heard about it. GC Leong is important, especially the last 10 or 11 chapters which talk about climate of different regions. Otherwise, I would suggest give it a good reading, the entire book, because it would help you in mains also. Then we have very good environment. Environment में तो Drishti in itself is a very good source. But Drishti का environment wala is also very famous in the market. Okay. Then we have science and tech. Science and tech normally I used to skip because I have a background of science, but I would not like you to skip. Be very good with the current affairs and very basic things. ठीक है, 6th to 11th अगर आप उठाओगे, not 11th would only have like 3-4 chapters. Apart from that, 6th to 10th, if you are reading them, read it very scientifically. कि भाई ये वाली चीज आ सकती है, थोड़ा बहुत. Don't devote a lot of time because it would be mainly from the current affairs. Okay, so do not waste your time over here. Mainly current affairs. But some basics, yes. Like plant cell और animal cell का difference आया था 2 साल पहले. ठीक है? उसके बाद what we are leaving? Economics. Economics के sources, first NCRT. NCRT would be 11th and 12th. That's it. Not more than that. Then we have survey. सर्वे अगर कोशिश कीजिएगा, अगर आप के पास टाइम है ना, तो ट्राई फॉर 2 years. लाइक एक अभी आप इस साल का जो आया है वो कर लीजिए, एंड द नेक्स्ट ईयर यू विल गेटिंग अगेन, राइट, इन February और March, तो वो भी कर लीजिए. इट वुड बी वेरी गुड फॉर योर मेंस आल्सो. सो वी हैव सर्वे, देन वी हैव बजट, देन सेकेंड ARC. ठीक है, वो सब में करना है. मेनली इतना काफी रहेगा. ठीक है, उसके अलावा ना देयर आर सम बुक्स जो अच्छी बताते हैं इकोनॉमिक्स की. कौन सी बताओ? रमेश सिंह इज देयर, बट रमेश सिंह इज हैवी एंड द कॉस्ट बेनिफिट इज लेस. सो दिस इज मेनली अबाउट प्रीलिम्स. नाउ दीज आर द बुक लिस्ट जो आपको हर एक टॉपर, हर एक इंसान आपको बता देगा. मार्केट में यही होता है ज्यादातर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर इन अ गुड कोचिंग सेंटर. ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग योर नोट्स, यू आर स्टडिंग हियर, मेंटेन देम. Go home, revise your notes and then try to make them even crisper. ठीक है, उसको बेस रख के try to solve out some questions, try to make them crisp. और जैसे मान लीजिए आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पे चल रही है, then you go home and study your 11th 12th NCERT. ठीक है, if you are taking this source and then decide that this would be my one page for this topic, not more than that. If you are keeping your notes bulky, then it would be very difficult to revise. आप नोट्स कितने भी खूबसूरत बना लीजिए, बट इन दी एंड व्हेन यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम, यू कैन जस्ट टेक वन थिंग विद यू एंड दैट इज हियर. यू कैन नॉट टेक योर नोट्स. जो नोट्स यहाँ पे है ना वही जाएंगे, और यहाँ पे ना ज्यादा जा नहीं सकता है उस दिन. सो इट वुड बी जस्ट वन पेज फॉर वन टॉपिक. बीट एनीथिंग, जीएस या जो भी है, ऑप्शनल है. बहुत हैवी टॉपिक होगा तो 2 पेज हो सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं बनाइएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं. So this is mainly about the prelims, but trust me, nothing can beat test series. And normally मेरे लिए prelims का test series ऐसा था कि I failed my prelims by 1 mark or so in my first attempt, and that was a devastating experience for me. क्योंकि मतलब ठीक है, failure सबका होता है. मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि people who are doing good in academics, तो जो एक बार सेकेंड फर्स्ट आने लग जाते हैं ना, तो सोसाइटी की और खुद की भी होप्स, एस्पिरेशंस बहुत हाई हो जाती है कि ये थोड़ी ये फेल करेगा, ये तो पास ही करेगा, ये तो टॉप ही करेगी.
तो मेरे लिए वो बहुत डिवास्टेटिंग था कि ओके दैट वाज माय फर्स्ट फेलियर ऑफ माय एकेडमिक लाइफ एवर. सो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बट आई डिसाइडेड टू गिव इट अगेन एंड थैंकफुली आई डिड इट. तो प्रीलिम्स का जो सेकंड टाइम मेरा रहा था ना, जहां मेरा क्लियर हुआ था, पेपर जाने से पहले मुझे पता था कि मेरा क्लियर होगा. तो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट. So I practice around 80 to 100 tests. And then I was sure कि अब यूपीएससी मुझे फेल नहीं कर सकता क्योंकि I have 80 to 100 tests, 100 questions in each test. तो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस था. And how did I prepare my test? कौन सा टेस्ट सीरीज लिया? तो I basically tried everything. जो मिला मैंने ट्राई किया. First thing, your past year papers. Try for 20. If you cannot do 20, try for 15, try for 10. But 20 year is a good target and is achievable. It's fine. उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को कीजिए. उनमें जो ऑप्शंस आते हैं ना, एक तो यू पीपल माइट नो कि अब तो यूपीएससी रिपीट भी कर रहा है 2-3 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. तो वन इज दैट. अनदर थिंग इज दैट द ऑप्शंस व्हिच यू हैव इन प्रीवियस ईयर्स, तो उस ऑप्शन से ही यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाने शुरू किए. ओके. तो जो ऑप्शन आपका ठीक है वो आपने पढ़ लिया, जो ऑप्शन ठीक नहीं है ना उसको भी एक बार गूगल कर लीजिए एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. लाइक अगर ऑप्शंस है एनवायरनमेंट में, फर्न्स है, मॉस है, एलिशंस है, तो अगर उसका आंसर मॉस है तो फर्न्स भी पढ़ लीजिए एक बार. जस्ट गूगल इट. थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फर्न्स जो है इस क्लाइमेट में उगता है, ये उसकी क्वालिटी है, दैट्स इट. एंड यू माइट गेट वन क्वेश्चन अबाउट फर्न्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. So this is how you're going to prepare. Even in history, culture में कोई भी चीज अगर वहां पे एक ठीक है और 3 गलत है, उन टेम्पल्स के बारे में, उन डांस स्टाइल में, आर्ट स्टाइल को, उनको भी एक बार गूगल कर लीजिए. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. ओके. एंड हियर वी हैव मिस्ड कल्चर, राइट? कल्चर कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग? फाइन आर्ट्स इज एन अमेजिंग सोर्स. ओके. ऑल्सो वी हैव नितिन सिंघानिया इन द मार्केट इफ यू वांट टू रीड. It's a good book and it's a heavy book. You can read it selectively, especially the first chapter. It's of around 100 pages. That is very good. And the rest of the book you have to choose yourself. क्या पढ़ना है क्या नहीं. Okay. So test series, do not miss it. Okay. जितना ज़्यादा हो सकता है. अभी कर रहे हो ना, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट कर लो, जो मिल रहा है कर लो. And especially past years. That's the first thing. Mains का पैटर्न पता है सबको? Are we clear about it? Okay. So optional would be your optional. Optional if you have not decided, then PSIR is good, Enthro is good, and the rest of मतलब इन दोनों को I would say they are doing equally good in the market. And for the rest of the optional, if you are choosing, तो कैसे choose करना है? संदीप भैया की तरह. If you are interested in it, जैसे मेरा ज्योग्राफी था, although I have not scored very good in my optional, पर मेरा इंटरेस्ट था. मुझे ये था कि अगर मैं फेल हो जाती हूँ and if I have to write 4 attempts, 5th attempt ये कुछ भी, तो I can carry forward with geography. It's not going to bore me. तो your interest, ये सेकंड प्रायोरिटी में रखूंगी. अगर पहली प्रायोरिटी होगी तो दैट वुड बी योर मार्क्स. बिकॉज एनी डे यू वांट अ गुड रैंक, वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, हैव अ गुड कार्डर इन एवरीथिंग. इसी के लिए तो आए हैं. तो मार्क्स स्कोरिंग देख लीजिए. अगर वो नहीं कर रहा है तो आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए. क्योंकि इवन सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, सम पीपल आर डूइंग गुड देयर आल्सो. तो ये आप अपना खुद से सोचिएगा. स्ट्रैटेजी आप अपने ऑप्शनल वाले से बात कर सकते हैं. इट वुड बी मेनली अबाउट द टेस्ट सीरीज, द पास्ट ईयर पेपर्स एंड द सिंपल जो सिलेबस है, डू दैट. इसमें ज्यादा वो नहीं रहेगा. बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि ऑप्शनल में जो पहले होता था, इट वाज लाइक पीपल वर गेटिंग 320 इन मैथमेटिक्स एंड 250 इन ज्योग्राफी. वो थोड़ा सा कम हो गया. थोड़ा सा अब चीजें बैलेंस आउट हो रही है क्योंकि ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पबेड के साथ भी काफी बुचरिंग हुई थी, तो उनका थोड़ा सा बढ़ा है और साइंस वालों का थोड़ा सा कम हुआ है. तो बहुत बड़ा गैप नहीं रह गया. With equal amount of preparation, you will get 216 geography and 218 PSI. So that is that 20 marks gap.
तो if you are opting something like geography, you can always try maximizing your score in GS. So that would be the strategy. Apart from that, we have essay. What's a good score in essay? Okay, mine was, I've written 3 mains. It was 119, that was a poor score. It was 126, that was a good score. And this year I have got 135. Now this is something like 5-7 top ke marks mein hai ye. So here I have improved a lot. And how did I improve it? बहुत simple strategy है मेरा hit and trial से. Don't be mechanical. Okay? Because essay is something where you need to hit the emotion of that person जो आपका check कर रहा है. जहाँ तक हमें पता है, I think there are English professors coming from Delhi University or somewhere जो आपका check करते हैं. So they are not looking for very good data sheets या figures, ये सब नहीं करना है. तो essay is about hitting the emotion. Lots of examples, good examples, a lot of themes. Now themes is something like, you need to explore everything. उसमें geographical angle दो, ancient, futuristic, then global, then talk about social dynamics like gender, caste, religion, then बताओ themes. और essay में what do you explore? Economic, then कुछ नहीं समझ आता ना तो अपने सब्जेक्ट्स देख लेना, सारे सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना. ट्राई हैविंग एटलीस्ट 1 पैराग्राफ ऑफ एवरी डायमेंशन, और जैसे ही वो पैराग्राफ खत्म होगा उसके साथ में रेलेवेंट एग्जाम्पल. दिस इज हाउ यू गो. अ लॉट ऑफ कोट्स, पर ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ कोट्स, मुझे याद नहीं रहते और मैं वहां जाके फिर कंफ्यूज जाती हूँ. बिकॉज यूपीएससी का वो एस्से जो है ना, वो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें हाउ डू यू जस्टिफाई विद 1 कोट. सो आई एम मोर अबाउट नरेटिव्स, stories. Basically I created a lot of stories and narratives जाने से पहले. I prepared like 20-25 themes कि क्या पूछ सकते हैं. Maybe women related theme, maybe judiciary related, environment, climate change. ऐसे करके I had very good 20-25 themes कि कुछ तो hit करेगा. And then one emotional story related to it. For example, I would tell you something. There was this essay last year, Better Than the Best करके. Have you read it? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा ऐसे. ठीक है. तो Better Than the Best करके कुछ ऐसे था, जो सेकंड वाला ऑप्शन था. तो वहाँ मेरी शुरुआत ऐसे थी कि there is this class where a teacher is distributing exam papers and he says roll number 1, 21 out of 30, roll number 2, 25 out of 30, and then similarly roll number 35, 19 out of 30 and something, and then roll number 35 gets 35 out of 30, and the entire class was shocked. How is it possible? Then the teacher said that this guy has solved the entire paper by 2 methods, one by himself and one by my method, and so this person has done better than the best, and so he is getting more marks than the maximum marks. So that was the intro of my essay, and then I wrote the entire essay, and after that, in concluding remark, I tried to connect it with the preface. That was my introduction, where I told them that do you want to know who that guy was, who that child was? And that child was Bose. Bose कौन से? Bose वो जिन्होंने No, not सुभाष चंद्र बोस. बोस वो है जो जिन्होंने बोसॉन्स डिस्कवर किए थे. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जिन्होंने डिस्कवर की थी. ठीक है? कौन? Yes. So he was a scientist. वो बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है, बोसॉन्स डिस्कवर करता है, and has a very big name in the Indian field and also globally. तो वहाँ से मैंने उसका चेकर का काफी इमोशनल पॉइंट जो था वो हिट किया था. So that's why I was hopeful कि I would get good marks in my essay paper. So similarly, I created a lot of stories. ये मेरा साइंस का स्टोरी था.
कि सम वेयर आई वुड फिट इट, एंड वहां जाके वो फिट हो गया था. So that's about essay. Then we have talked about optional. Then we'll talk about GS. Qualifying paper, you know about it, right? English and Hindi, they are very easy. You just have to qualify them. Although some people fail, I think it's 8 to 10% जो हिंदी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा पढ़ के जाना. जस्ट सी द एग्जाम पेपर्स कैसे आते हैं. GS 1, 2, 3, 4. I'm taking GS 4 first because I think मेरा ठीक है वो. I got 135 in 2019 mains, and this year I've got 114, 2021 mains. So this was probably because उस time पे inflated था marks ethics का, तो everyone was getting good marks, and probably our topper was somewhere around 160 plus, and this year it was slightly less, तो इतना ही है. And there is one pattern कि essay and ethics का जो होता है ना, it's very similar. Normally a person scoring good in essay would score good in ethics also. Why? Because almost the same pattern, that you have to hit the emotion of the checker. Okay, तो यही मेरा यहाँ पे रहा था. How I have prepared GS4, it's mainly just the syllabus. I took every topic कि ये मेरा syllabus का topic है, इसके लिए मेरे पास एक पेज है कि नहीं है. How did I prepare that page? Any possible source. I even Googled it. I created my examples, my personal life examples, something from the market, something from the newspaper. But I had very unique examples. And the theory part, it can be done from anywhere. Any good book. Lexicon hai, और भी बहुत सारे. And then you people will be taught here. Okay, so use your notes and have very unique and very good examples. That's all about ethics. And it's also about completing the paper. काफी लंबा paper है. Okay. Then coming to GS1, you know the syllabus, right? History, art and culture, society, geography. Almost everything that you will be doing in your prelims, apart from little topics like society and everything, वो थोड़ा सा अलग रहेगा. तो वो बाकी तो यहाँ से prepare हो गया है. Society वगैरह जो topics है ना, वो आप कर लीजिएगा और try them completing before your mains, मतलब before your फाइनल एग्जाम ऑफ द प्रीलिम्स, जहां पे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, उससे पहले ये सोसाइटी शुड बी प्रिपेयर्ड. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये पहले ही कर लीजिएगा. बिकॉज द विंडो दैट यू विल बी गेटिंग बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर रिवाइजिंग योर नोट्स एंड राइटिंग देम. ओके, तो मैंने बाद में प्रिपेयर किए थे सोसाइटी के. डोंट बी लाइक मी, बी अ बेटर पर्सन, गेट अ बेटर रैंक. ओके, देन अबाउट GS2, पॉलिटी है, IR है, और गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है. तो इसमें पता है क्या है, बाकी चीजें आप पहले कर चुके हैं. दीज आर समथिंग न्यू जो यहाँ पे अलग से आएंगे. गवर्नेंस, इसमें मेरे ठीक है नंबर, मतलब मेरा GS का जो स्कोर है, दैट GS एंड ओके इट्स 413. दैट्स अ वेरी गुड स्कोर इस साल के हिसाब से. मेरा ऑप्शनल कम है, एंड 135 इन ऐसे. तो ये कितना हुआ बताओ? ओके, एवरीवन इज गोइंग टू पास CSET. So governance and IR and social justice very similar to society, but you still need to prepare it. Governance में ना थोड़ा सा मैंने अब की बार अच्छा किया था, इसलिए मेरे इसमें 112 है मार्क्स. वो थोड़ा ट्वीक ये था कि I tried giving them statements coming from judges, like रमन्ना जी ने कुछ बोला है, DY चंद्रचूड़ ने कुछ बोला है, कोई भी बड़ा जो जज के थ्रू कोई स्टेटमेंट आ रहा हो, मुझे न्यूज़पेपर मिलता था. बच्चन सिंह जजमेंट है, तो वहां से मैंने वो स्टेटमेंट उठा के लिख लिए थे. तो आई हैड 2-3 पेजेस, जैसे टीना मैम बोलती थी ना ब्राउनी पॉइंट्स, वैसे ही. तो वो स्टेटमेंट्स थी मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे यूज की थी, एंड दैट गेव मी अ गुड एज. बिकॉज एक तो मेरा इंट्रो और कंक्लूजन का टाइम बच रहा है. आई डोंट नीड टू प्रिपेयर देम, आई जस्ट यूज द स्टेटमेंट एज इंट्रो और कंक्लूजन. तो वो टाइम भी बचा है, एंड इट्स वेरी इंप्रेसिव व्हेन यू हैव अ स्टेटमेंट फ्रॉम रमन्ना. लाइक जब हम बात करते हैं कि वुमेन को जुडिशरी में रिजर्वेशन देनी चाहिए, सो देयर वाज दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर. सो आई हैड माय स्टेटमेंट कि DY रमन्ना हैज सेड
कैटेगोरिकली एक उसमें सेमिनार में, that women reservation in judiciary is not a matter of charity, it's a matter of right. So that was my concluding remark in that particular question. So obviously I would have got some half mark, 1 mark extra than others. तो ये वाला काम ना इसमें बहुत अच्छा करता है. Then IR is something where you need to make a lot of maps, a lot of dimensions and make it beautiful. The paper looks beautiful because of IR questions, because this is something a speaking paper. मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ कि जहाँ पे we have figures, we have dimensions, we have maps, तो question बहुत प्यारा लगता है. तो वहाँ पे you can show a little creativity also. So that would be about IR. Coming over GS3, GS3 का एक problem है, and that is that people are not getting good marks here. Especially in last few years, जब मैंने preparation करी है, तो anything near 90 is considered a good score in GS3 now. But people do get 100 plus also. So I would say कि इसको अच्छे से prepare करके जाना. Although we never know, next year हो सकता कुछ और हो जाए. तो GS3 is about? Yes. Then? Very good. You people know about your syllabus, right? Am I leaving anything over here? I've done eco, science tech, environment, disaster management, agriculture, internal security. इस पेपर में generally score कम आ रहा है, तो prepare it very nicely. And also, this is a paper where you have this thing. We have 20 questions, right? तो हर एक पेपर में ना ऐसा आता है कि there will be some questions like 2-3 questions कि ये कहाँ से आ गए. These were not expected. But इस पेपर में it would be somewhere around 15-16 questions would be easy, and the rest are going to be a troublemaker. Okay, 4 to 5 questions are troublemaker. Like we got S400, we got blue LED last year. किसी को नहीं आता था. सबका अलग अलग होता है. मेरा इसमें स्कोर शायद 96 या 97 के आसपास है, which is normally a good score in GS3. तो वो कहाँ से आया? वो इसलिए आता है because I am someone जिसकी स्पीड बहुत कम है. Although I would advise that you should be very good with your speed. Okay, आपका एग्जाम 5 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, 3 घंटे से पहले. But normally मेरा नहीं होता है. Tried my best, मेरा नहीं होता है. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर 4 से 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो there are people who would say कि ओके यार पेपर देखा और 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो अब तो पेपर खराब हो जाएगा. तो मेरा ये रहता था कि 4-5 क्वेश्चन नहीं आए, अब तो बढ़िया, ये तो किसी को नहीं आते, अब तो पेपर में 15 या 16 क्वेश्चन, अब तो पेपर कंप्लीट हो रहा है. तो आई ऑलवेज हैड दैट कॉन्फिडेंस कि जितने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने बाहर से आ रहे हैं, तो ये पेपर में तो मैं नंबर लाऊंगी. अब मैं भी बराबर, वो भी बराबर. तो दैट कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है अगले मीन्स में इससे ज्यादा भी मुश्किल आ जाए. तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इवन इफ यू नो 10 क्वेश्चंस और 10 भी अगर ऐसे आ जाते कि ये कहाँ से आए, then those questions are difficult for everyone, right? And you just have to be the best among the lot. So it would be easy for you. तो उसमें घबराना नहीं है. That confidence in those 3 hours, they are going to decide where you're going to fall. Because every mark count. अगर 96 से 86 पहुंच गए ना, अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ, तो you'll be probably out of risk. या फिर आप पहुंचोगे मेरे जैसे डायनेमिक्स में, फिर दोबारा पेपर लिखोगे. तो डोंट बी लाइक दैट. पूरे कॉन्फिडेंस से लिखना है इसमें पेपर. और वो जो 4 से 5 क्वेश्चन है, डू वी लीव देम ब्लैंक? नो, वी डोंट लीव देम ब्लैंक. राइट एनीथिंग, मेक अ फिगर, यू विल नो समथिंग अबाउट देम. ब्लू एलईडी है, ठीक है, ब्लू एलईडी की एप्लीकेशन अगर वो पूछ रहा है, ठीक है, हमें नहीं भी पता है, तो एलईडी का एटलीस्ट फुल फॉर्म पता है, थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा कंक्लूजन. कुछ नहीं आता. मैं ह्यूमैनिटीज अगर कोई बैकग्राउंड से है, ब्लू एलईडी की एप्लीकेशंस हैं, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, गिविंग इंडियन एज ओवर ग्लोबल कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, मे बी ब्लू एलईडी ने बहुत सारे इन्वेंशंस और बढ़ाए होंगे. तो दीज आर द पॉइंट्स, राइट? कोशिश करो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशन, कुछ भी एक्सप्लोर करो, बट बी देयर. ओके, अगर साइंस का है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने तो पक्का मदद की है ना उसने. तो 10 पॉइंट तो है ना, कोई भी बना सकता, कहीं भी बना सकता है, इवन इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट इट. तो डू नॉट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक.
and also try to address what has been asked. They won't ask you explain blue LEDs. They would ask about their disadvantage, advantage, analyze the potential or something like that, and they would be very generic points. You can always create them. तो इसमें आपका वो जो एक्सप्लोरेशन वाला है ना, क्रिएटिविटी वाला, वो यहां दिखा दीजिएगा. इवन 2 marks इन अ क्वेश्चन जहां पे कुछ नहीं आता इज अ गुड थिंग. ओके, तो दैट वाज अबाउट GS 1 2 3 4. ये सब आपका हो जाएगा तो यूल हैव इंटरव्यू के लिए वी हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स. दृष्टि इज अमंग द बेस्ट. आई गेव माय mock interview with Drishti and I had a very amazing experience. I was asked a lot of good questions और उसमें से कुछ मेरे रिपीट भी हुए थे मेन इंटरव्यू में. ऑल्सो दे गिव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी, तो मैंने वो जाके प्रिपेयर कर ली थी एंड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दृष्टि इंटरव्यू वाज जस्ट 1 हफ्ता मेरे मेन इंटरव्यू से पहले एंड इट वाज अ गुड थिंग. तो उसमें ट्राई कीजिएगा, कुछ मॉक्स कीजिएगा, अपने आपको जानिएगा, अपना डैफ अच्छे से भरिएगा, अपना कार्डर प्रेफरेंसेस, सर्विस प्रेफरेंसेस, ये सब अच्छे से भरिएगा एंड प्रिपेयर इट वेरी वेल. So that was the brief about the strategy. Now I think I'm able to justify the session. कुछ अपने बारे में मैंने बताया, strategy आपको बताई. So let's start with the interaction, है ना? So we can take up your questions. Okay. So who is going to ask me the first question? And जो question पूछता है ना, that's a sign of courage. And courage is very much required in civil services. So be upfront about it. If you have any kind of question, you can surely ask. बहुत easy वाले जो है ना, फिजी, छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आप यूज कीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वोल्केनो का है तो व्हाई नॉट टेक एग्जाम्पल ऑफ अ वोल्केनो जो रिसेंट में हुआ हो. हर साल इंडोनेशिया में होता है वोल्केनो. यू गेट द न्यूज, यू रीड द न्यूज़पेपर, वो वाले एग्जाम्पल्स यूज कीजिए, वो ज्यादा रेलिवेंट होंगे, है ना, जो न्यूज में आ रखा है. तो ट्राई यूजिंग करंट एग्जाम्पल्स. देखो, आई वुड से न्यूज़पेपर तो धर्म की तरह है, न्यूज़पेपर तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है. कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना न्यूज़पेपर पढ़े पेपर पास करते हैं, दे डू गेट गुड रैंक्स. पर एक जनरल जो फिनोमेना है वो यही है कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल रीड न्यूज़पेपर्स एंड दे आर गुड फॉर यू. दे आर गुड फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो इट्स अ गुड हैबिट. न्यूज़पेपर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन टेक एनीथिंग बिटवीन हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. अगर वो नहीं है तो कोई और यूज कर सकता है. But try reading a newspaper, try following some magazine, and if possible, I would also suggest go through योजना and कुरुक्षेत्र, because अभी आप लोगों के पास समय है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. योजना कुरुक्षेत्र में 2 दिन में खत्म हो जाएगी, आप अगर 3 घंटे भी ले रहे तो. ओके. When we are doing this ना, तो एक तो अपने आप को पहचानना कैसे है कि 2 लोग होते हैं, मतलब 2 तरीके की चीजें होती हैं कि आप टास्क बेस्ड स्टडी कर रहे हो या टाइम बेस्ड स्टडी कर रहे हो. सम पीपल आर लाइक कि मुझे ये बुक इतने घंटे में और इतने दिन में खत्म करनी है, एंड देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू कंप्लीट अ बुक, नॉट कंप्लीटिंग अ बुक, दे वुड प्लान लाइक कि आई नीड टू स्टडी 10 hours ईच डे. ओके, सो फाइंड योरसेल्फ कि आप टाइम बेस्ड पे काम करते हैं या टास्क बेस्ड पे. एंड देयर आर पीपल जो दोनों पे काम करते हैं. तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ. उसके बाद योर टाइम टेबल वुड बी डे का टाइम टेबल, 3 days का टाइम टेबल, 7 days का टाइम टेबल, देन मंथली, क्वार्टरली, ईयरली. जैसे इंडिया रन करता है ना, तो दे वुड हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स, दे वुड हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स. वैसे ही हमें भी काम करना होता है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई दिसंबर तक आई नीड टू कंप्लीट माई ऑप्शनल एंड माई GS पेपर्स. देन यू नीड टू नो कि मुझे इस हफ्ते ऑप्शनल का इतना करना है, GS का इतना करना है, एंड देन डिवाइड द स्लॉट्स, ठीक है. एंड देन ऑल्सो ऑलवेज हैव सम बफर डेज विद यू. ओके, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 90 days एंड यू आर प्लानिंग कि भाई मैं 90 days इस दिन यही करूंगा या करूंगी, नॉट अ वेरी गुड अप्रोच. You will have some personal life troubles, you will have some health related issues, you can have some gathering in your family, some problem in your friend circle or anything like that. So do have some buffer days for yourself, okay. And give a break to yourself. जब आपका एक टास्क पूरा हो जाए ना टाइम में, तो give a break to yourself.
तो आई थिंक कंटेंट इज द की, कंटेंट इज स्टिल द की। तो थोड़ा सा कंटेंट तो आपका रेडी होना चाहिए, बट डू नॉट वेट फॉर दैट पॉइंट कि मेरा कंटेंट जब 100% ठीक हो जाएगा तब मैं लिखूंगा या लिखूंगी। इफ योर कंटेंट इज जस्टिफाइंग योर कोर्स, योर एग्जाम अराउंड 70% से, इंटरनल सिक्योरिटी का 70% हो चुका है, now you should start writing your papers. Okay, not do not wait for that 100% completion, वो तो लास्ट मोमेंट तक किसी का भी नहीं होता। देखो इसका मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो आपके ये वाले स्टूडेंट्स हो गए ना कि जो टॉपर्स रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के पास बस एक एडवांटेज है आपसे, सिर्फ एक ही, कि हमें जो वो सिटिंग आर्ट्स है ना, वो हमें पहले से आते हैं, कि हमें थोड़ी आदत है कि हाँ हम 7-8 घंटे पहले से बैठ सकते हैं, वो आदत है। उसके अलावा आप भी कल्चर पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने भी पहली बार पढ़ा था। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, राइट। हम लोगों के पास सब कुछ नया होता है। पीपल हु आर MBBS, दे हैव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज कि वो 10-12 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, पर उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, बाकी तो कोर्स तो उनके लिए भी नया ही है। बस वही एडवांटेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। डू नॉट बी स्कैर्ड। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत ही एवरेज मार्क्स लेके आए हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया रैंक लेके गए हैं। बहुत सारे, पर पता है शायद आप लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं कि, और वो हेडलाइंस भी ऐसे बनाते हैं कि IIT दिल्ली से टॉपर और फिर ये वाली रैंक ली। तो डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ देम, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। चांद का अलग समय है, सूरज का अलग समय है चमकने का, उन्होंने उस टाइम मेहनत कर ली थी। आप अब मेहनत करेंगे, आपकी रैंक IIT दिल्ली वाले से बेहतर आ जाएगी। मैं IIT नहीं गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक मेरे से नीचे आई है IIT वालों की, कुछ की बहुत एवरेज है जो ऊपर आए हैं। देर आर पीपल जिन्होंने ओपन से ग्रेजुएशन करी और मेरे से बेहतर रैंक लेके आए हैं। तो जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग, ठीक है। पर शायद आप लोग अट्रैक्ट उस न्यूज से होते हैं। अब बाकी देखिए, देर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड 60%, डू नॉट बी स्कैर्ड, जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग आवर्स। उन्होंने 12th के बाद कर लिया, आप अब कर लो। यहाँ सब एक बराबर है। ओके okay? हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे ही घबराई थी कि ये तो इतना बड़ा तो न्यूज़पेपर है, इसको ही पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इट्स फाइन। बेसिकली इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है 5 या 6 घंटे लग जाएंगे एक पेपर खत्म करने में, एंड ग्रेजुअली द टाइम वुड कम टू 45 to 50 मिनट्स, इतना हो जाएगा। अब कहाँ से कैसे पढ़ें, तो फिलहाल जो है ना उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, एक वो होते हैं जो पहले एडिटोरियल पढ़ते हैं, बाकी न्यूज़पेपर बाद में पढ़ेंगे, और कुछ होगा जो पहले न्यूज़पेपर पूरा पढ़ेगा, एडिटोरियल बाद में पढ़ेगा। तो मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैंने ये 2 हिस्से में बांट लिए थे कि मॉर्निंग सेशन द रेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, इवनिंग बिफोर आई गो टू बेड आई रीड एडिटोरियल्स, मेरे लिए वो स्लीपिंग स्टोरी होगी, तो मुझे बढ़िया नींद आएगी। तो मैंने ऐसे बांट लिया था। और उसके बाद जब आप बांटोगे ना तो न्यूज़पेपर बड़ा हल्का हो जाता है 2 हिस्से में शुरू में। और उसमें कहाँ से पढ़ना है, इनिशियली तो आप सब पढ़ने शुरू कर दोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा दैट पॉलिटिकल न्यूज जो है नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन एग्जाम, राइट। जितना आपको क्लैरिटी सिलेबस की होगी कि दीज आर माई टॉपिक्स, दिस इज माई IR टॉपिक, तो विद टाइम में क्या होगा कि जब न्यूज़पेपर आता है सामने तो ये दिखता है, ओ सोशल जस्टिस पेपर 2, ओके इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3, कैन इवन स्टार्ट इट नाउ इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ सिलेबस। कीप अ पेन विद यू, जो न्यूज है ना उस पर लिख दो GS3, GS2, 10 मिनट ना पूरा न्यूज़पेपर बस यही लिखो, तो आपको पता लगेगा अच्छा ये न्यूज़ कहीं की नहीं, काट दो, ये GS2 है, ये GS3 है। इस तरीके से आपका न्यूज़पेपर बहुत छोटा हो जाएगा। अनदर थिंग इज दैट वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग, राइट, जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। काफी सारे है, दृष्टि का है, आपको जो आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस देख लीजिए शुरू में, तो वो भी आपको काम करेगा। ठीक है, वेलकम, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगी कुछ साल बाद मैं आपको शुभकामनाएं दे रही होंगी। ठीक है, okay, my interview was a little tricky. Boards are looking for personality, yes। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में ये होता है कि यू कैन से सॉरी एंड आपके नंबर नहीं कटते, मतलब कभी ऐसा हुआ होगा किसी के साथ, अदरवाइज नॉलेज के बिहाफ पे दे विल से ठीक है, ओके इट्स फाइन टू से सॉरी, बट आई लर्न सॉरी इन गुड वेज, ओके सर, सॉरी सर, आई रीड अबाउट इट सर, बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। आई एम सॉरी सर, आई हैव
limited knowledge on this topic. I'll go home and read about it. तो be very patient, be very calm, और आप उससे सॉरी बोल सकते हैं. पर्सनालिटी में आप सॉरी नहीं बोल सकते. इफ दे आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, कुछ राइट्स है रिलीजन बेस्ड ग्राउंड पे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, तो क्या स्टेप्स आप लेंगे, तो वहां पे आई कैन नॉट से सॉरी, वहां पे आई नीड टू टेक अ स्टैंड, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. तो 80% पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है वहां पे, और बाकी कुछ नॉलेज बेस्ड है. वो इतनी नॉलेज आप ले लोगे कि आप कर सकते हो. एंड यस, देयर आर टाइम्स इट इज ट्रिकी, पर ट्रिकी होता है तो नंबर अच्छे आते हैं. ठीक है, यू वेलकम, थैंक यू. So he has a very good question and it would be beneficial for all of you. आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, तो it would take somewhere around 1 hour 30 minutes or 2 hours if you're completing them. और उसके बाद में एनालिसिस जो है वो बहुत टाइम लेता है. इट माइट टेक 6 hours और मे बी अ डे ऑल्सो. तो उसके लिए क्या है कि इट्स फाइन, यू नो, आई यूज टू टेक 6 to 8 hours टिल माई लास्ट पेपर ऑल्सो. पर उसमें व्हेन यू आर एनालाइजिंग इट, मेक 1 page फॉर इट. ओके, राइट डाउन दोज थिंग्स जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी, दैट दिस इज लाइक कंप्लीटली न्यू इंफॉर्मेशन. तो उसका ना एक पेज बना लीजिएगा आफ्टर एनालाइजिंग इट, एंड देन आई यूज टू थ्रो दैट अवे. कि now I'm not going to keep it over my table because this is going to give me stress. Now I have 1 paper. Okay, if I'm doing 80 papers, I'll just have 80 papers to finally revise, and it would take just me like 2 days or something before my prelims, और वो सब बहुत छोटा हो गया. So that's the strategy. उसमें है कि जो क्वेश्चन सॉल्व है, मतलब अच्छे से आंसर आए उनके, उनको आप रीड करना चाहिए उसी वक्त, या फिर जो सिर्फ गलत हुए उसी उन्हीं को करना चाहिए? जो सही होते हैं उस पर मैं टाइम नहीं खराब करती. इन जनरल जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए, मतलब आई वाज नोइंग, आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट देम एंड देन आई डिड इट रॉन्ग. सो वो तो बहुत अच्छे से. एंड इफ देयर इज समथिंग जो मुझे बिल्कुल सुना ही नहीं दिया कहीं भी, एंड इफ इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, देन व्हाई नॉट, यू आर गेटिंग सम गुड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट, to study them also. Okay, welcome. देखो, when you are going into police service, it's more about security, law and order, and giving security to your environment, to your surroundings. तो when you are talking about a child beggar, तो अगर वो law and order, security related problem है, तो you can certainly help him or her. And yes, it's a problem. क्योंकि वो जो वहाँ है ना, हो सकता है आने जाने वाले व्हीकल्स को प्रॉब्लम हो रही हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो रही हो, और उसकी अगर डेथ हो गई ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो येस, इट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो येस, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम और हर. आप रेलिवेंट स्कीम से उसको रिलेट करा सकते हैं. यू कैन टॉक टू योर बैचमेट्स हु आर इनटू IAS सर्विसेज, जो आपके कैडर में होते हैं. तो आपकी बिल्कुल अच्छी बातचीत होती है, आप उनसे हेल्प करा सकते हैं. You have your discretion to go to NGOs, right? इतने NGOs हैं, आप उनसे उनको मदद करा सकते हैं. आप खुद की हेल्प से कुछ खोल सकते हैं. There are a lot of civil servants, a lot of IPS who are working with NGOs. तो आप उनसे उनको एसोसिएट करा सकते हैं. तो कोई भी सर्विस में अगर आप है ना, आप डायनेक्स में है, डायनेक्स में आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कहीं भी है, इफ यू हैव दैट प्लेटफॉर्म, यू हैव सोर्सेज टू हेल्प एनीवन. बस वो नीयत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो ज्योग्राफी में सिलेबस बहुत अच्छे से देखना. स्टैंडर्ड बुक्स ले लो. ठीक है, ऑप्शनल में जो यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है वो, प्लस योर स्टैंडर्ड बुक्स, रीड देम वेरी वेरी नाइसली एंड देन मेक द नोट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी इज अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर. ओके, मेकिंग देम वेरी क्रिएटिव. ओके, you need to, like paper 2 है तो every question would demand a map. Okay, then very small pictorial आप diagrams बना सकते. जैसे अगर watershed का question है तो ये ना बड़ी छोटी छोटी चीजें आप GS में भी यूज कर सकते हो. So मेरे बहुत नॉर्मल से डायग्राम है. अगर urban flood है तो this is my diagram, simple. So this is Jaipur. Okay, this is Nahargarh, this is Jaigarh. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ जो है ये वाला सरफेस उन्होंने कंक्रीट कर दिया है. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये सीमेंट हो गया, ये आपका बन गया अर्बन
हीट डोम, अब जो भी रेनफॉल यहाँ पे होती है वो सिंक्रोनाइज होके वो यहाँ आती है, एंड एवरी ईयर जयपुर इज गेटिंग अर्बन फ्लड्स. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो आप ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम्स बनाना बहुत सारे, एंड वहां पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. यू कैन सिमिलरली कॉपी देम इनटू जीएस आल्सो. तो बहुत क्रिएटिव होना जीएस इसमें, ज्योग्राफी में, एंड डू अ लॉट ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स. दे आर गोइंग टू जस्टिफाई बहुत अच्छे से. जितने ज्यादा पेपर करे उतने ज्यादा मेरे नंबर आते रहे. लाइक पेपर 2 में आई गॉट 138 मार्क्स लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, एंड मेरा पूरा भी नहीं हुआ था पेपर, काफी छूटा था, पर मेरे पास लास्ट ईयर बहुत अच्छे से हुए रखे थे. तो वो बहुत प्यारे प्यारे, मतलब पूरे ऐसे, अगर 20 मार्क्स है ना तो 4 शीट लिखना घर बैठ के अच्छे से, एंड यस गेट देम चेक्ड बाय योर ग्रुप, बाय अ टीचर, और कुछ भी. और अगर ऐसा कुछ होगा तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो. आई एम अवेलेबल ऑन सम प्लेटफॉर्म्स. आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई डू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. ओके. इंटरव्यू देखो, इट डिपेंड्स आप कौन से बोर्ड में जा रहे हैं, उनका कैसा मूड है, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ डैफ यू आर हैविंग. इफ योर डैफ हैज अ लॉट ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तो ज्यादातर ना वो डैफ के आसपास हिलते हैं. अगर मेरी हॉबी है पेंसिल स्केचिंग, दे माइट आस्क मी हाउ आर यू गोइंग टू यूज पेंसिल स्केचिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो योर डैफ इज योर बेसिकली योर रिज्यूमे. करिकुलम वाइटे होता है ना, जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं, बस वही है. उसके हिसाब से you'll be asked your questions. उसके अलावा a lot of current affairs you need to have very good grasp. और current affairs में mainly they would ask your stand. आप कहाँ stand लेते हैं. तो you need to have empathy for social groups. You need to have a balanced opinion. You need to show creativity. तो उन सब के marks हैं, ठीक है. तो इंटरव्यू ना कहीं भी जा सकता है, depending upon the board, the day, the mood. So it's everything under the sky. बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपका डैफ अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, यू विल डू वेरी वेल. फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर फैक्चुअल क्वेश्चंस में ना आप बहुत हम्बली आप उनको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है. बाकी यस, इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल देम कि भाई आपके पास योर हॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, तो आप हॉबी का थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए. जैसे आपका इंट्रो पूछा जाता है, तो एंड योर इंट्रो विद योर हॉबी. तो लास्ट क्वेश्चन वहीं से पिकअप करेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, एंड देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. तो फैक्चुअल में यस, नो इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. तो वो न्यूट्रल वाला यही है कि इफ यू नो व्हाट यूपीएससी, डीओपीटी, व्हाट योर गवर्नमेंट, व्हाट योर नेशन, व्हाट योर सोसाइटी इज सीकिंग फॉर, कि वही जो 2-4 चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में लिखी है ना, वो अगर जस्टिफाई हो रही है, देन यू आर अ न्यूट्रल पर्सन. एंड अगर बहुत ही ज्यादा फंस जाते हो, देन यू हैव अमेजिंग टीचर्स, आस्क देम, ठीक है. क्यों, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस, बट डू नॉट बी यू नो एक साइड में मत जाना. बहुत सारी चीजें ग्रे में होती हैं. हाँ, तो ट्राई टू टेक अ बैलेंस ओपिनियन. पर ऑब्वियसली अगर विमेन का वायलेंस का केस है, तो उसमें कोई बैलेंस का कोई जरूरत ही नहीं है. इट इज ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ, बाकी चीजों में यस यू कैन हैव ग्रे. आप जितना लिखेंगे ना, जितना पढ़ेंगे, थिंग्स वुड बिकम क्लियर. इफ यू कंप्लीट 5-6 जीएस पेपर्स, यू विल फाइंड कि हाँ, बैलेंस होना इज फाइन, ठीक है. तो आप लोगों से बात कीजिए, आप आपस में बात कीजिए. तो एंड ऑलवेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सिलेबस है ना, वो हम एंड में पढ़ते हैं, वो अभी पेस्ट कर लो. will help you becoming a good person also. Okay? I'm preparing for 2018 for the first year of my graduation. Okay. And we my grades to pass it with 2 numbers. I have a qualified to complete my question paper. And also I'm considering a competence in writing the answer. Okay. So you failed your prelims by some marks. How many tests did you give? 70 to 80. Then it's a problem. क्योंकि 70 to 80 टेस्ट में आपकी okay. तो were you doing your 70 to 80 papers at home? तो इंस्टीट्यूट में पूरे हो रहे थे, ठीक है, उस वहां पे पूरे हो रहे थे पेपर. ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड.
तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ फॉर नॉट कंप्लीटिंग द पेपर. तो अगर आप जब अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो होता क्या है, जैसे आप अपना मेंस का भी करोगे 3 घंटे का, तो अगर 3 घंटे में मेरे 15 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो देर आर पीपल हु वुड टेक अनदर आवर और अनदर हाफ एन आवर टू कंप्लीट द पेपर, एंड देर आर पीपल हु वुड कीप योर पेन, उठाया और चल दिए कि 15 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, दिस इज व्हाट आई डिजर्व, ओके आई विल बी गेटिंग लेस मार्क्स इन माय टेस्ट सीरीज, इट्स फाइन. तो ट्राई स्टिकिंग टू द टाइम टेबल. जो आपका 3 घंटा है, 2 घंटा है, उसी में कीजिए. उसके बाद अगर क्वेश्चन छूट रहे, पनिश योर सेल्फ. ठीक है, तो उससे आपका माइंड ट्रेन होगा कि मुझे जल्दी पेपर पूरा करना है. ठीक है, डू नॉट टेक एक्स्ट्रा टाइम हियर, प्रैक्टिस वेल. जितना प्रैक्टिस करोगे. हाउ डज सचिन तेंदुलकर गेट्स दैट कॉन्फिडेंस? कैसे होता है? प्रैक्टिस. इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि बस यहीं से तो आना है, और क्या आएगा. ठीक है, प्रैक्टिस. So he is asking about the strategy for revision. Your strategy of revision is simple. Keep it crisp and revise it multiple times. That's it. There is no another key. यही है. हाँ. नहीं, ऐसे साफ नहीं होती है. ये साफ जब होती है when you have just read it about like 1, 2 times, 3 times. जिस दिन आप 10 times पढ़ लोगे ना मॉडर्न हिस्ट्री को, आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझे याद है, मुझे पेज नंबर भी याद हो जाते हैं कि रानी की झांसी के लिए यहाँ लिखा है, ह्यू ग्रोस का स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, क्योंकि यू हैव रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. सो रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. और कुछ नहीं है, कोई आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा. तो डेटा के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप सबको. डेटा के लिए क्या होता है कि यू विल हैव वेरी गुड डेटा फ्रॉम योर न्यूज़पेपर, फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, फ्रॉम बजट, और कोई भी NFHS आ गया, कोई भी ऐसा. तो आई यूज समथिंग कि मेरी डेटा शीट थी अलग से. तो 2-3 पेजेस की थी डेटा शीट जो मेरे मेंस में काम आती थी, और मैं वो वहाँ लिख लेती थी. उसके छोटे छोटे पिक्चर्स, बार ग्राफ्स. एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का एक ग्राफ बन जाता है कि भाई एग्रीकल्चर है या GDP है कि -0.2 था, फिर 4 पॉइंट समथिंग था, फिर 3.4, फिर 3.3. ऐसे करके मैंने अपनी डेटा शीट्स प्रिपेयर करी थी. And how am I going to use them? If there is a question on agriculture, वो पूछेगा मुझसे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें एग्रीकल्चर में, तो I will have this graph with me और आप वहाँ कनेक्ट कीजिए. ठीक है, तो make it crisp and have your data sheets ready with you. हाँ जी, रिविजन देखो क्रिस्प होगा ना अगर आपके पास 2-3 पेजेस है डेटा शीट के. तो आई थिंक एग्जाम से पहले, जाने से पहले अगर आप 4-5 बार उसको पढ़ लेंगे तो दैट्स एनफ, आप कर लेंगे उससे. देखो दोनों चीजें हैं. स्कोरिंग वाला जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है. आई थिंक इफ यू चूजिंग अ सब्जेक्ट जो आपको स्कोर अच्छा करा सकता है, तो GS कैन बी मैनेज्ड. पर अगर ऐसा चूज कर लिया है दूसरा कि जो GS में हेल्प करे, पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो GS में हेल्प करता है? ज्योग्राफी इतना नहीं होता है, पता है. जैसे ठीक है ज्योग्राफी वाला हेल्प करता है, पर मान लो कोई किसी और सब्जेक्ट से है, फिजिक्स ऑप्शनल है उसका, वो भी GS में बहुत खूबसूरत कर सकता है. इट वुड जस्ट रिक्वायर 2 more days, 5 more days फॉर हिम टू ब्रश अप हिज ऑप्शनल. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो रैंक बहुत अच्छी चाहिए टू हैव योर डिजायर्ड सर्विस इन कार्डर. मैक्सिमाइज योर मार्क्स. खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी होप्स और एस्पिरेशंस लेके आए हो ना यहाँ पे, तो वो आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करेगी. पर दिस थिंग कॉल्ड परसिवरेंस. परसिवरेंस क्या होता है? परसिवरेंस है कि व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम्स, तो कुछ लोग जो है वो बेंड डाउन कर जाएंगे और कुछ लोग जो है उनके बावजूद आगे काम करेंगे. सो परसिवरेंस इज मूविंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी. देखो जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, देयर विल बी सम टाइम कि भाई नहीं अब नहीं हो रहा है. It's fine to give yourself a break, but do not give up. Okay? तो बस एक ब्रेक ले लेना, छोड़ना मत. I failed my mains जब और रात को 1 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, तो बड़ा मुश्किल था. उस रात सोई नहीं थी मैं. तो मैं सुबह उठी एंड बड़ी हिम्मत करके मैं अपने पापा के पास गई और मैंने कहा पापा ये तो नहीं हुआ, ये तो रह गया. एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि भाई पापा को अभी पता लगा था प्रीलिम्स हुआ है और अब ये बोलेंगे कि PhD कर और चल अब शादी होगी तेरी. तो पापा ने बोला कि
नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो एक स्टेटमेंट भी काफ़ी थी मोटिवेशन लेने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, मैंने अभी तक मतलब मेरे बहुत क्लोज सर्कल में ये पता है। 2020 वाले मेंस जो थे, 4 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स था। 6 अक्टूबर माय मदर फेंटेड मेरे सामने, शी फेंटेड। और माय मदर हैज़ बिन वेरी स्ट्रांग फॉर मी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और जब आपको होता है ना कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ योर लाइफ वो चला गया आपके हाथ से, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो वी टुक हर टू द हॉस्पिटल। शी वॉज इन द ICU फॉर 20-25 days। शी गॉट ऑपरेटेड। हमें वहाँ जाके पता लगा था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद हर ब्रेन, और उनका CSF फ्लूइड, ब्रेन फ्लूइड नोज के थ्रू बाहर आ रहा था पूरा। शी कुडंट रिकग्नाइज मी, माई मदर कुडंट रिकग्नाइज मी। मैंने उनसे बात की एंड नहीं पहचानती थी। आई वेंट टू द डॉक्टर और मैंने कहा आप मम्मी को जल्दी छोड़िए, मेरे मेंस हैं। तो ही सेड कि बेटा अभी पेपर भूल जाओ, देयर इज़ वेरी लेस होप कि आपकी मम्मी बचेंगी। और उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज कि हमने हॉस्पिटल भी चेंज किया। पहले सरोज हॉस्पिटल, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल में थी मम्मी, और मेरे पास कुछ था नहीं। और मैं इस चीज़ के लिए रोती थी कि आई हैव माई मेन्स, आई हैव क्लियर्ड माई प्रीलिम्स, देयर आर पीपल हु आर राइटिंग टेस्ट, जो कोचिंग में लिख रहे हैं, घर पे लिख रहे हैं, और मैं यहाँ ये देख रही थी एवरी 5-10 मिनट्स मेरी मम्मी पूरी बेहोश थी। मैं जाती थी और ऐसे हाथ रख के देखती थी कि इज शी ब्रीदिंग और इज शी नॉट ब्रीदिंग। दैट वाज द टाइम। और बाकी सब पढ़ रहे थे। तो मैं लिटरली डेली रो रही होती थी और अपने गॉड से प्रे कर रही होती थी कि भगवान ये क्या कर दिया, मतलब मेरा तो खत्म हो गया सब, मेरे पास किस बात की मोटिवेशन है अब, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो पर्सनल लाइफ सब डिवास्टेट हो गई। एंड एक ही प्रेयर होती थी, भगवान मुझे मेरी माँ दे दो, हो गया UPSC, नहीं करना। बट स्टिल परसिवरेंस, और वो फेथ है ना, वो लीप ऑफ फेथ कि कोई नहीं हो जाएगा। एंड डे बाय डे पहले चीज़ें खराब हुई, वी लॉस्ट एवरीथिंग इकोनॉमिकली, ठीक है, जो मोमेंटम था, जो कॉन्फिडेंस था, सब खत्म हो गया। एंड एक ग्रुप था मेरा व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ जिनको लगता था कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, शी गेट सम रैंक सम डे। और मैं बड़े खुशी से मतलब उन बच्चों से, उन फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करती थी। तो उन्हें लगा कि नाउ शी इज़ नॉट एक्टिव ऑन व्हाट्सएप, और ये यूज़ नहीं कर रही है। मैं थोड़ा ऑफ हो गई थी सोशल मीडिया से। तो देयर वाज दिस फ्रेंड जिसने वहाँ लिखा था कि शी इज़ फिनिश्ड, इसका कुछ नहीं होगा, ये ख़त्म हो गई। आई रेड इट और मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब मेरा रिजल्ट आया था ना, तो उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजा था मुझे, और मैंने बहुत हम्बली उसको एक्सेप्ट करके उसको थैंक यू भी बोला। बट आई नो कि उसने उस दिन क्या बोला था, और उसको भी पता उसने क्या बोला था। सो दीज आर द स्टोरीज। एंड फिर मम्मी का ये था कि शी सर्वाइव्ड, शी इज़ अ वॉरियर। और वी गॉट हर सर्जरी, ब्रेन सर्जरी डन। तो काफ़ी मुश्किल था, सर्जरी के बाद भी काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। शी वेंट टू डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज स्टिल ऑन मेडिकेशन बट शी इज़ डूइंग फाइन। तो वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल इन दिसंबर एंड माई मेन्स was starting on 8th of January, 8 to 17। तो सिर्फ इतना सा ही टाइम था। उस टाइम मैं इस होप के साथ गई थी कि मेरे को मेंस लिखने का मौका मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC क्या करेगा, फेल करेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो कुछ नहीं है, मैं जाके लिखूंगी। कुछ साल मैंने पढ़ाई तो करी है ना, 1-2 साल कुछ तो नॉलेज है, मैं लिखूंगी। आई वेंट, आई रोट, आई हैड माई फेथ, आई हैड माई कॉन्फिडेंस कि देखा जाएगा। एंड आई गॉट 638 रैंक इन दैट वेरी अटेम्प्ट। ठीक है, तो चीज़ें हो जाती है जब कॉन्फिडेंस है, जब मोटिवेशन है। मोटिवेशन दूसरों की लाइफ से ले लो, अपनी से ले लो, कहीं से लो, बहुत है मोटिवेशन। विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियोस देख लो, ठीक है, मोटिवेशन बहुत है, आप ले लीजिए, कोई कमी नहीं है। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतना ज्यादा स्ट्रांग होना, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपको शेप कर रही हैं। वो जो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी उन्हीं प्रॉब्लम से बनी है, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं होता। रोती थी मैं डॉक्टर्स के आगे कि
हेल्प कर दो, और मुझे वो बताते भी नहीं थे कि मेरी मम्मी जिंदा है कि नहीं है। पोस्ट सर्जरी मेरे को देखने का मौका नहीं मिला था, सब रूम्स क्लोज थे एंड आई थॉट शी इज नो मोर देयर। बहुत हेल्प करी, बहुत गिड़गिड़ाई मैं डॉक्टर्स के आगे, हेल्प नहीं कर रहे थे मेरी जब रैंक आई ना तो डॉक्टर फोन कर रहा था मुझे टू कॉन्ग्रेचुलेट, और उस टाइम मैं उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मैं कहाँ से क्या क्या करूँ। आई हैव अ लिटिल ब्रदर, आई हैव अ फादर हु इज नॉट इन वेरी गुड हेल्थ, एक मैं हूँ, मुझे अपना फैमिली भी संभालनी है, और यूपीएससी तो गया, बट एवरीथिंग कम्स बैक इफ यू हैव दैट लीप ऑफ फेथ। और एक छोटा सा, मेरे को बहुत ज्यादा कोट्स याद नहीं होते, एक छोटी सी चीज है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। और जितनी डिफिकल्ट आपकी जर्नी है ना, उतनी बड़ी और खूबसूरत लाइट मिलेगी टनल के एंड में, तो बस चलते जाइएगा। ओके, हैंड राइटिंग ना मुझे ऐसा पर्सनली लगा है कि ऐसे में मैटर करता है थोड़ा सा, क्यों, और ऐसे में ना आप अच्छा लिख सकते हो क्योंकि ऐसे में टाइम होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा राइटिंग अपना इंप्रूव कर लेना। बाकी जीएस में राइटिंग इतना होता है कि पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अगर वो नहीं आ रहा है, देखो लिखना तो है, ठीक है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ना मैं तो पहले वो 20-15 वाले जो होते हैं ना बड़े क्वेश्चंस वो करती हूँ, पर आप अपने हिसाब से कीजिएगा। जो बिल्कुल ऐसा है ना कि बिल्कुल ही नहीं आता, तो यू कैन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड राइट देम इन द एंड, बिकॉज दैट क्वेश्चन वुड रिक्वायर सम थिंकिंग एंड सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। तो उसको थोड़ा सा रोक के बाकी पेपर पूरा करके एंड में गेट बैक टू दैट क्वेश्चन, गिव इट 5-7 मिनट्स and write anything you know about it. Do not leave it blank because that gives a very wrong impression. नहीं भी आता है कुछ तो इतने साल में नॉलेज है कि लिखोगे, ठीक है। It's fine to have your graduation subject different and your optional different. It's fine because अब anthropology है, किसी का नहीं होता है ग्रेजुएशन में, but anthropology is giving very good marks, so it's fine to have it, right? तो इट्स फाइन, यू जस्ट नीड अ लिटिल प्रिपरेशन कि आप उसको इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई करोगे, दैट्स इट। जस्टिफाई ऑन द बेसिस लाइक कि सर मैम माय इंटरेस्ट वाज पॉलिटिकल साइंस आया ओवर द टाइम, जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मैंने सिलेबस देखा और मैंने इसको पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय जनरल स्टडीज, एंड सो आई हैव ऑप्टेड पीएसआईआर, ठीक है। नहीं, फिजिक्स में मार्क्स कम नहीं आते, फिजिक्स में मार्क्स इज समथिंग लाइक यू नो अबव एवरेज ही आते हैं, ठीक है, कम नहीं आते हैं, 260-270 जनरली ये ट्रेंड रहता है, ठीक है। एंड पीएसआईआर में विद द इक्वल मेहनत यू माइट गेट 280-290, ये डिफरेंस है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, आई वुड सजेस्ट गो होम एंड दोनों के सिलेबस देख के दोनों के 2-2 पेपर लिख के देखो, या फिर ऐसे देखो कि फिजिक्स में on the basis of your knowledge of your bachelor's and master's, how many questions can you attempt right now without revising anything? If you're able to do more than 50%, then you have some grasp about physics, okay? And write 2 papers, दोनों के try कर लो PSI और इससे, और फिर देखो। इंटरेस्ट नहीं है पर नंबर आते हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हो, इट्स फाइन, पीएसआईआर इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, अच्छे मार्क्स आते हैं। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन 260, 270, 280, 290, दैट्स इट, दैट्स द विंडो। इफ यू कैन ब्रिज इट इन योर जीएस, देन गो विद फिजिक्स, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि भाई नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आई नीड टू मैक्सिमाइज माई स्कोर एवरीवेयर, गो विद पीएसआईआर। ओके, वेलकम। तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपके 2 ऑप्शनल रहते हैं और काफी डिफरेंट है, तो पीपल लाइक गो फॉर जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो नॉर्मली वो सब्जेक्ट्स बहुत छोटे हैं, दे आर इजी टू प्रिपेयर। डू यू रियली वांट टू गो इनटू फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट प्लान बी है? प्लान ए है? प्लान ए है तो फिर काम करना पड़ेगा। अगर प्लान बी है, बहुत लोगों का होगा या फॉरेस्ट प्लान बी, तो फिर तो प्रीलिम्स के बाद भी हो जाता है, ठीक है। बस ये है कि आपके पास नोट्स अच्छे होने चाहिए तो हो जाता है। इफ इट्स प्लान ए तो फिर अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी
IAS IPS वाला जो अपना मेन है सिविल सर्विसेज वाला सेंट्रल एग्जाम्स वाला, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है. फॉरेस्ट इज कंपैरेटिवली इजियर इन मेंस. इट्स डिफिकल्ट टू क्लियर प्रीलिम्स, मेंस इज इजियर. आंसर राइटिंग तो बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत बेसिक सी चीजें हैं. दैट इंट्रो होता है, कंक्लूजन होता है, बॉडी होती है. बॉडी में 2 से 3 पार्ट्स होते हैं. सो इट वुड हैव सम प्रीफेस जहां पे आप उसका रेलिवेंस बताएंगे जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है. उसके बाद इट विल हैव द बॉडी. द बॉडी जनरली हैज 2 पार्ट्स. सो इट विल हैव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा एडवांटेज, थोड़ा उसका डिसएडवांटेज, और उसके बाद यू कैन गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क. सो दैट्स द मेन फॉर्मेट. ये फॉर्मेट मिस मत करना एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ओके. नहीं, यू नीड टू बैलेंस इट आउट. दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शनल और जीएस का तो वही है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए. और उसके लिए कैसे होगा, वही वाली सेम स्ट्रैटेजी है मेरी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारा, ठीक है. इतने दिन मैं ऑप्शनल को दूंगी, इतने दिन मैं जीएस को दूंगी और कैसे कैसे दूंगी. सो दैट वुड बी योर 1 डे टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, मंथली, क्वार्टरली एंड लॉन्ग टर्म, और उसमें हैव सम बफर डेज. तो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज दैट. ऑप्शनल कितने टाइम में कंप्लीट किया? ऑप्शनल मेरा कोविड ने पूरा करवाया था. तो कोविड ने ना वो प्रीलिम्स डिले कर दिया था. तो बस एक वही अच्छी चीज थी उसकी. तो ऑप्शनल में देखो अ गुड 3-4 मंथ्स तो हो गया आपका 70-80% सिलेबस नोट्स वगैरह प्रिपरेशन के लिए. अ गुड 3-4 मंथ्स. उसके बाद इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. तो वो आप जीएस के साथ में धीरे धीरे मैनेज करते रहते हो. बट अ वेरी गुड 3-4 मंथ्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन वेयर optional would take around 60% or 70% of your day and GS would take 30 to 40% of your day. And वो जब हो जाता है उसके बाद आप धीरे धीरे ऑप्शनल को कम कर दीजिएगा, प्रीलिम्स बढ़ा दीजिएगा. अभी अगर ऑप्शनल कर रहे हैं, ट्राई टू कंप्लीट इट बाय दिसंबर, मैक्सिमम बाय जनवरी, नॉट मोर देन दैट. ओके. पीवाईक्यू कब लगाने हैं? पीवाईक्यू अभी भी शुरू कर सकते हैं. तो हाँ जी, आप पीवाईक्यू ऐसा कीजिएगा. इफ यू आर स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स राइट नाउ, इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, तो पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी वाले हैं वो तो लगाना शुरू कर दो अभी. हाँ जी बिल्कुल. अब आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले जाइएगा. इट वाज वेरी वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू. आई वाज बेसिकली रीलिविंग माय ओल्ड मोमेंट्स, क्योंकि मैं भी कभी यहाँ चेयर पे थी और ठीक है, आई वाज ब्लेस्ड, आई डिड माय हार्ड वर्क, मैं यहाँ आई. आप भी अपना पूरा कीजिएगा कि कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पे आके आप भी नई वाली जनरेशन को मोटिवेट कीजिएगा. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. सब बहुत सारी पढ़ाई. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. सब बहुत सारी पढ़ाई कीजिएगा. ओके. एंड कोशिश रहेगी आप लोगों से बार बार आके मुलाकात करने की. ठीक है. ओके, बाय बाय. हैव अ वेरी नाइस डे. यस, जय हिंद. ओके.